Now we are going to study our second chapter of civics. This is prejudice and discrimination. In this chapter we are going to study about how the discrimination has been there and what are the different process by which the discrimination has been done. In this chapter we are going to study about some specific terms like prejudice, stereotyping and discrimination, inequality, constitution. All this we are going to study in this chapter about the details. First we are going to study what is prejudice. Prejudice means forming an opinion about a person, that this person will be that type of a person, and without knowing them, without knowing the reality, without knowing the truth, a person can make their thinking about some other person, that this person is like that and that person is like that. That is known as prejudice. Next is in prejudice there are many examples, like when we talk about the people, some people make about thinking about the other people like they are a thief, or they always stolen something and they are the belong from a poor class, they are not good people who are poor, they are thief, they stolen the things and other things. This type of on dependent on their view, on depending on seeing them, like they are wearing dresses which are not well, they are wearing loose dresses or different type of dresses, clothes they wear, the language they speak, the religion they follow. On basis of them the people make a thinking about the other people, that these people belonging to that caste are not equal to us, they are lower or they are different type of people, that we can't accept them as the normal people and other thing of this type of thinking. When people made this for other person are known as prejudice. After that next is the stereotyping. Stereotyping means, what is stereotyping? It is connected with a prejudice. Stereotyping means you fixed an image related to a person or a group of a people, like that people who live in cities and people who live in villages. People who live in cities, they make thinking about the villagers that they are very poor, they are not working very well, their education is low, and they are not equal to us, they can't compete with us. This type of thinking they made with the people who live in the village, or the villagers, or the other people who come from the other country or from other state, or they are labor, they does not treat them equal with them. They always think that these people are always low to us, and this group of people are not according to us, we are upper class, they are lower class. This type of thinking they made for a group of people or a people is known as stereotyping. Stereotyping. After next is a discrimination. Discrimination, what happened in this discrimination? The people who clean our houses, the person who clean our sewages, and other people who work in the factor where the cleaning has been done, the people who are rich or who are at a high level, they think that the people who clean their sewage, or who are low, who clean the roads, and they are belong to a lower category, they are not according to us, and they treat them with an unfair treatment. They give them an unfair treatment, they give them the old clothes, they do not give them proper food, it does not make them treat like a people, they treat them like a lower caste people or like an animal. They does not provide them a proper facilities and proper things. The unfair treatment of a person or a group of a person is known as discrimination. After that next is inequality. Discrimination and inequality is always connected to each other, they means the same thing. Inequality, in which a condition where the difference between discrimination has been done between the man or woman, or a lower class or a upper caste, a boy, a girl, and different type of inequality has been there. The people who belonging to higher class, they think the lower class people are not good. Boys and girls have been treated differently in many areas. People belonging to the city are treated in other way, belonging to the villages are treated in other way, or discrimination, inequality on the basis of their color. If someone is fair, he will
he and she will get a special treatment. If someone is dark, he she will be not be treated properly, or these are treated in equality. अब इस चैप्टर में जो है हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है कि हम प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारी आती है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी पर्सन के बारे में एक थिंकिंग बना लेते हैं कि ये जो पर्सन है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। जैसे आप किसी पर्सन से मिलते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने उसको देखा, आप बिना उसको जाने ही एक थिंकिंग बना लेते हो कि ये बहुत अच्छा है या ये बहुत बुरा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का क्या होता है, आप किसी भी टीचर को देखते हैं, अगर फर्स्ट टाइम वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो आप ऑलरेडी माइंड बनाते हैं कि ये टीचर हमेशा स्ट्रिक्ट ही रहेगा और ये टीचर हमारा सॉफ्ट हार्टेड है, ये हमारा अच्छा टीचर है। तो इस टाइप की जो थिंकिंग होती है जो आप किसी पर्सन को लेके, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को लेके बना लेते हैं कि अरे नहीं ये तो फ्रेंड मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करता, ये दिखता ही अच्छा नहीं है। तो इस टाइप से क्या है, आप एक थिंकिंग बना लेते हो किसी पर्सन को लेके। तो वो जो थिंकिंग है बिना उसके बारे में जाने जो आप बना लेते हो अपने माइंड में, उसी थिंकिंग को, उसी सोच को प्रीजुडिस बोला जाता है, प्रीजुडाइज बोला जाता है। प्रीजुडिस जो है वो उसी चीज़ को कहा जाता है कि आपने किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग अपने एक थिंकिंग बना ली। इसका हम एग्जांपल पढ़ते हैं, आपकी बुक में दे रखा होता है कि एक बार क्या होता है कि एक फैमिली है, उसमें फैमिली हेड होता है, फादर मदर होते हैं और उनके 2 चिल्ड्रंस होते हैं। दे आर पासिंग फ्रॉम अ विलेज, एक विलेज से वो जा रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो एक विलेज से जा रहे होते हैं तो उनकी जो कार है वो सडनली कहीं पे स्टॉप हो जाती है, वो वर्क करना बंद कर देती है। तो उनकी जो गाड़ी है वो ख़राब हो जाती है। अब जिस एरिया में वो गाड़ी ख़राब होती है वो एकदम सुनसान एरिया होता है, मतलब जंगल वाला एरिया होता है, खाली एरिया होता है। तो वो जो पेरेंट्स हैं उनको हमेशा लगता है कि ये जो उनके फादर है वो ये कहते हैं, उनके पहले अपनी वाइफ से कहते हैं कि आप अपनी सारी ज्वेलरीज निकाल के अपने हैंकी में रख लो, क्योंकि ये क्या है, जंगल का एरिया है, गांव का एरिया, और गांव के लोग कैसे होते हैं, चोर होते हैं। तो उन्होंने एक थिंकिंग क्या बनाई गांव के लोगों के लिए कि गांव के लोग जो होंगे वो चोर ही होंगे, क्योंकि ये गांव बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अपनी वाइफ को बोला कि आप अपनी सारी ज्वेलरीज निकाल के हैंकर में रख लो। जैसे ही वो रख लेती हैं उसके बाद क्या होता है कि वो देखते हैं कि उनको गाड़ी में जो है वो मूव ही नहीं करती। अब पर्सन जो है वो सोचते हैं कि हम कोई हेल्प करे, तो मैन जो होता है वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है और बाकी अपने बच्चों को और वाइफ को गाड़ी के अंदर ही लॉक कर देता है कि तुम लोग इसी के अंदर बैठो ताकि अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो हम उसको फेस कर सकें। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वहाँ से काफ़ी लोग पास आउट होते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग निकलते हैं, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता। अब एक बाइक में 2 पर्सन आते हैं, एक पर्सन जो होता है उसकी काफ़ी बड़ी दाढ़ी होती है, ठीक है, उसकी बियर्ड होती है काफ़ी बड़ी, और दूसरे पर्सन होते हैं और वो क्या करते हैं, वो पहले उनको देखते हैं कि काफ़ी देर तक देखते हैं। तो जिस तरीके से वो देखते हैं तो उस पर्सन को क्या लगता है, मैन को, कि ये जो पर्सन है वो थीफ है, चोर है, ये हमारी चोरी करने आए हैं, हमें लूटने आए हैं, हमारे पास जो भी पैसे हैं उसको ये लूट के ले जाएंगे। बट वो पर्सन थोड़ी देर आगे जाके उनकी कार के आगे जाके रुकते हैं और उनसे पोलाइटली पूछते हैं कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है क्या, हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं कि हम आपकी गाड़ी ख़राब होगी तो वी कैन कॉल अ मैकेनिक। तो वो जो पर्सन होता है वो उनको बताता है कि मेरी जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई है, इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो वो पर्सन ये बात सुन के क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप गाड़ी के अंदर जाके बैठिए और अपनी गाड़ी को अंदर से लॉक कर लीजिए, बाहर नहीं निकलना जब तक हम लोग वापस नहीं आते। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो बाइक में जो 2 पर्सन आए थे वो जाके एक पेट्रोल पंप से एक उसमें बॉटल में पेट्रोल भरवा के लेके आते हैं। पेट्रोल भरवा के लेने आने के बाद वो उस पर्सन को देते हैं कि ये पेट्रोल है, ये आप अपनी गाड़ी में डाल लीजिए और आपकी गाड़ी को जल्दी से यहाँ से ले जाइए, क्योंकि सुनसान इलाका है और ये आप लोगों के लिए सेफ नहीं है। तो ये चीज़ देख के उनको थोड़ा अच्छा फील होता है कि अदर पर्सन ने हमारी हेल्प की। अब जो पर्सन होता है यानी कि जो मेन होता है, जो आदमी होता है, वो क्या करता है, उन दोनों आदमी को जो बाइक पे आए थे उनको पैसे ऑफर करता है कि ये आप 1000 रुपीज़ रखिए। लेकिन वो दोनों क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं 1000 रुपीज़ नहीं है, ये जो हम पेट्रोल लाए हैं वो सिर्फ 200 रुपीज़ का ही है, तो आप हमें सिर्फ 200 रुपीज़ दे दीजिए, हमारे लिए वही बहुत है। तो वो सिर्फ उससे 1000 रुपीज़ न लेने की वजह से 200 रुपीज़ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इस तरीके से उन बच्चों की उन जो आदमी होते हैं उनकी फैमिली की कार स्टार्ट हो जाती है पेट्रोल फिल होने के बाद। फिर जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो वो बच्चे जो उसमें होते हैं वो अपने पापा से पूछते हैं
कि फादर आप तो कह रहे थे कि जो फार्मर्स होते हैं, जो विलेजर्स होते हैं वो थीफ होते हैं, लेकिन जिन पर्सन से हम मिले वो तो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमारी हेल्प की और आपने जो रिटर्न में उनको पैसे दिए उन्होंने वो पैसे भी नहीं लिए। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि प्रीजुडिस में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को देख के या उसके बारे में बिना जाने हमें कोई भी थिंकिंग नहीं बनानी चाहिए। सेकेंड आता है स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग में क्या होता है कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा समथिंग जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, ठीक है। हमारी फैमिलीज ऑल टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करती थी कि जो बॉयज़ होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं, यानी कि विलेजेस में क्या होता है कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ घर का काम ही करेंगी, उनके लिए एजुकेशन नहीं होती, ना वो पढ़ेंगे ना लिखेंगे, उनका काम है सिर्फ घर पे बैठ के खाना बनाना और अपनी फैमिली के, अपने हाउस होल्ड वर्क करना और अपनी फैमिली की केयर करना। इस टाइप की जो थिंकिंग होती है वो स्टेरियोटाइपिंग में आती है। इसके और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि गर्ल्स को मैथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। एक बार श्वेता जो होती है उसके मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो उसकी टीचर उसको ये बोलती कि कोई बात नहीं बेटा, गर्ल्स के तो मैथ्स में मार्क्स अच्छे आते ही नहीं है। ये जो थिंकिंग है इसको हम स्टेरियोटाइप कहते हैं कि एक थिंकिंग बना ली कि गर्ल्स जो हैं वो या तो सिर्फ घर का काम करेंगी या फिर किसी भी चीज़ में वो अच्छे से वर्क नहीं करती, तो उनको क्या है बॉयज़ से थोड़ा कम समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कलर्स में भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि जो ब्लू कलर है वो बॉयज़ के लिए होता है और जो पिंक कलर है वो गर्ल्स के लिए होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, सबका अपना अपना पसंद होती है, सबके अपने अपने फेवरेट कलर्स होते हैं। उसी तरीके से एक ऑलरेडी हमारी जो सोसाइटी है उसमें ऑलरेडी थिंकिंग बना रखी कि ब्लू कलर हमेशा बॉयज़ के लिए रहेगा और पिंक कलर हमेशा गर्ल्स के लिए रहेगा। उसके अलावा बॉयज़ को लेके भी स्टेटमेंट बनाई जाती है कि बॉयज़ को कभी भी अगर कोई बच्चा, कोई लड़का रोता है तो उसको ये सिखाया जाता है कि बॉयज़ डोंट क्राई, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? उनको ये सिखाया जाता है कि जो लड़के जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, मार्चो होते हैं, उनको रोना नहीं चाहिए, उनके लिए रोना अच्छा नहीं होता। जो रोते हैं वो वीक होते हैं, जैसे कि गर्ल्स हमेशा रोती हैं तो वो वीक होती है। आपने कई बार सुना होगा, आप लोग खुद भी बहुत बार बच्चे बोलते होंगे कि अरे यार क्या कोई लड़का रोता है तो अरे यार क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। ये कोई चीज़ थोड़ी होती है, इसमें क्या है, ये स्टेरियोटाइपिंग है जो कि एक ऑलरेडी हमारी सोसाइटी ने एक बाइस सेपरेट कर रखा है कि ये चीज़ें गर्ल्स से रिलेटेड है और ये चीज़ बॉयज़ से रिलेटेड है। बहुत सारी क्लोथिंग जो होती है, कपड़े जो हम पहनते हैं उसमें भी बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये जो थिंकिंग है, ये जो बिहेवियर है, ऑलरेडी एक इमेज बना रखी है सोसाइटी में कि बॉयज़ के लिए चीज़ होती है, गर्ल्स के लिए चीज़ होती है। इस पर बहुत सारे जोक्स वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी इंसान को, इसका जो बेसिस होता है डिस्क्रिमिनेशन का वो प्रीजुडिशियल होता है। ये दोनों एक दूसरे के बेसिस, ये उसका बेसिस होता है, ठीक है, बेसिक होता है डिस्क्रिमिनेशन प्रीजुडिश का। डिस्क्रिमिनेशन में भी क्या होता है कि जैसे मतलब कोई भी चीज़ है उसमें क्या होगा कि पर्सन को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। जैसे कोई पर्सन है वो अगर अलग लैंग्वेज बोल रहा है, अलग जगह से बिलोंग करता है, उसकी सोसाइटी अलग है, उसका विलेज अलग है, उसकी सिटी अलग है, उसका पहनना, उसके पहनने का तरीका अलग है, तो इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, पीपल्स को सेपरेट किया जाता है। जैसे कोई पर्सन है अगर वो बहुत ज़्यादा फेयर है, सुंदर है, तो उसको अलग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलता है, और कोई पर्सन अगर उसका कलर डार्क है तो उसको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। तो ये हमारे डिस्क्रिमिनेशन में आता है। इनइक्वलिटी भी सेम चीज़ होती है, इसमें भी यही बताया गया है कि पर्सन जो होते हैं उनके बेसिस पे क्या किया जाता है, रिसोर्सेज के बेसिस पे या किसी स्टेटस के बेसिस पे सोसाइटी पे बहुत सारे रिसोर्स में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सोसाइटी के अंदर, ताकि लोगों में क्या किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है कि लड़कों को ये देना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं देना चाहिए, इस सोसाइटी के लोगों को ये मिलना चाहिए, इस सोसाइटी के लोगों को ये नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से उनमें अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमें पता है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मतलब इंडिया में जो 28 स्टेट है, हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग तरीके के लोग रहते हैं, उनका पहनावा अलग होता है। ये सारी चीज़ें, इसी सब चीज़ों पे के ऊपर भी क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मतलब भेदभाव किया जाता है, ठीक है। कोई पर्सन है, अगर हम इंडिया में रहना है, कभी भी आपने देखा हो कि अगर इंडियन किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो उनको बहुत बार प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। लोग, वहाँ के जो फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो इंडियन को लोअर समझते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो इतने अच्छे एजुकेटेड नहीं होते, हाईली एजुकेटेड नहीं है, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, इनको ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता।
बहुत बार होता है। उसी तरीके से इंडिया में भी क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है, जैसे कोई गांव से बिलोंग कर रहा है या फिर कोई सिटी से बिलोंग कर रहा है या फिर कोई पर्सन है वो अदर स्टेट से आया है, तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। उनको ये बोला जाता है कि आप आउटर हो, आप दूसरे स्टेट से आए हो, आप हमारी लैंग्वेज नहीं बोलते, आप हमारे बराबर नहीं हो। तो इस तरीके से उनमें क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। इन सब चीज़ों में क्या है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। कि डाइवर्स और डिस्क्रिमिनेशन यही होता है कि जिसमें कि कौन कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है। उसके अलावा क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो एक सोशल ईवल है। सोशल ईवल का मतलब क्या है, एक सामाजिक राक्षस के तरह है जो कि एक हमारे जो कंट्री है, हमारी जो सोसाइटी है उसको खा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ सिटीज़ हमें पता है कि कुछ हायर क्लास में बांटा हुआ है कि ये हायर क्लास के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। हायर क्लास वाले मिडिल क्लास को इक्वल नहीं समझते, मिडिल क्लास वाले लोअर क्लास को इक्वल नहीं समझते, ये इनको अनइक्वल समझते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो स्वाइपर्स होते हैं हमारे घर में, जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे हमारा सीवेज ठीक करते हैं, रोड साफ़ करते हैं, नालियाँ क्लीन करते हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है, प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, उनको छोटा समझा जाता है कि ये हमारे इक्वल नहीं है, इनको दूर रखा जाए, हमारे साथ ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना हमें प्रॉपर तरीके से रहेंगे, तो उनको क्या किया जाता है, दूर रखा जाता है। आपने पुराने टाइम में सुना होगा कि बहुत सारे हमारे हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं कि कई बार क्या किया गया था कि जब पुराने टाइम पे राजा और महाराजा होते थे तो उन्होंने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेट कर रखा था अपनी प्रजा को कि ये जो ऊपर ब्राह्मण से ये बहुत बड़े होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, फिर उसके नीचे वर्णास होते हैं। तो ये जो है वर्णास सबसे नीचे माने जाते हैं वो लोग जो कि राजा महाराजाओं के वहाँ पे काम करते हैं। तो जो लोग राजा महाराजा के वहाँ काम करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको कपड़े खराब कपड़े दिए जाते थे, सड़ा गला खाना दिया जाता था, उनको अच्छे से ना अपने साथ बैठने दिया जाता था, ना उठने दिया था, उनको हमेशा दूर रखा जाता था कि तुम हमसे दूर रहो, हमारे पास मत आओ, उनको टच नहीं करते थे। उसको अनटचेबिलिटी भी बोलते थे कि किसी पर्सन को आप किसी एक सोसाइटी को, अपने लोगों को दूर कर दे कि हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें टच नहीं करेंगे। और जो उनको टच कर देते थे उनको क्या माना जाता था कि ये तो क्या है, अछूत हो गए हैं, अछूत है, हम इनको टच नहीं करेंगे, अपवित्र हो गए जो भी इसको टच करते हैं, किसी भी चीज़ को वो टच करते थे। तो ये अनटचेबिलिटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन रिसेंट सोसाइटी में सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो हर एक पर्सन को एक इक्वल राइट प्रोवाइड करता है कि जितने भी लोग हैं उनको हम इक्वल राइट प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं, सबको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे कि इसमें पेज नंबर 187 में आपको एक टेबल दे रखा है, इसमें इमेज, रीज़न एंड रियलिटी टुडे दे रखा है। तो इसमें क्या है, आपको ये पढ़ना है। इसमें क्या दे रखा है कि जैसे क्या होता है कि जो साउथ इंडियन लोग होते हैं, आपने देखा होगा साउथ इंडियन लोग जो होते हैं उनका कलर काफ़ी डार्क होता है, और नॉर्थ इंडियन जो होते हैं उनका कलर फेयर होता है। तो साउथ इंडियन कोई नॉर्थ इंडियन में आके काम करता है तो नॉर्थ इंडियन उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते, उनको कम समझा जाता है कि ये तो डार्क हैं, ये हमारे इक्वल नहीं रहते, हमारा ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। इसका मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न ये होता है कि साउथ इंडिया जो होता है वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आती है, सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उन सनलाइट के वजह से हमारी स्किन में एक टाइप का वो पाया जाता है, पार्ट पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा सनलाइट होने की वजह से हमारी स्किन डार्क हो जाती है। तो ये इसका मेन रीज़न होता है। और आजकल की रियलिटी हम देखें तो अब तो क्या है, ये सब चीज़ें इस कंट्री में, इंडिया में ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। हर एक पर्सन को, हर एक इंसान को, हर एक जेंडर को इक्वल समझा जाता है और बराबरी में किया जाता है कि सब लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन को अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए और सबको इक्वल देनी चाहिए। बस से आप देखोगे कुछ एबनॉर्मल स्टूडेंट, एबनॉर्मल लोग होते हैं जैसे जिनके किसी के पैर पे चोट लगी हो, प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहे, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, तो उन लोगों को भी क्या किया जाता है, सोसाइटी में अलग से ट्रीट किया जाता है कि अरे इनको तो कुछ भी नहीं आता है, तो डेफ है, बहरे हैं, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो उनको भी सोसाइटी की गलती अलग तरीके से
पहले क्या करती थी, अलग तरीके से उनको ट्रीट करती थी। लेकिन क्या है, हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने ये बताया कि हर एक जो पर्सन हमारी कंट्री में रह रहा है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, मैन हो, वुमेन हो, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करे, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई भी वर्क करता हो, चाहे वो बिजनेस हो या फिर वो स्वैपिंग का काम हो, क्लीनिंग का काम हो, तो उन एक पर्सन को क्या किया जाएगा, बिल्कुल इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। किसी को भी किसी भी तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा। जैसे कि पुराने टाइम में कास्ट वगैरह में डेवलप किया गया था कि लोअर क्लास है, हाई क्लास है, ये बैकग्राउंड है, इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म की गई। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे 26 जनवरी 1950 में फोर्स में आया था। फोर्स में आया था मतलब ये उस टाइम पे लागू हो गया था कि पूरी कंट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा कि इसके अकॉर्डिंग ही पूरी कंट्री प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। जो इसमें लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सारे पर्सन को वर्क करना होगा। तो ये 26 जनवरी 1950 में आया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये बताया था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने हमेशा अनइक्वालिटी के अगेंस्ट फाइट की थी, क्योंकि वो भी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और उनके टाइम पे उनके जो विलेजर्स थे वो उनको बिल्कुल भी इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म किया कि जो भी किसी भी सोसाइटी से कोई भी पर्सन बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से करता हो, उसको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिले। हर एक इंसान को पूरा हक है कि वो अपनी अच्छे से जी सके और उसको पूरा क्या मिले, बेनिफिट मिले, और उनको किसी भी तरीके से लो छोटा ना समझा जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। बहुत बार क्या होता है कि कई जगह ऑफिसेज वगैरह में लड़कों को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है, लड़कियों को नहीं किया जा सकता। बहुत सारी जगह आप देख सकते हो उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, गर्ल्स को नहीं दी जाती है, गर्ल्स को कमज़ोर समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ख़त्म कर दी कि चाहे कोई भी पर्सन अगर जैसे कोई शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहा है, वीकर सेक्शन जैसे हम बोलते हैं, शेड्यूल क्लास जिसे बोला जाता है, एसटी, एससी या बैकवर्ड क्लासेस जो होती है, उन सबको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कॉन्स्टिट्यूशन ने कि चाहे कोई भी बैकवर्ड क्लास से क्यों ना बिलोंग कर रहा हो, हर एक पर्सन को जॉब करने का, उसकी कमाई करने का, उसको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, ये वो खुद डिसाइड करेगा, नहीं कि सोसाइटी डिसाइड करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या गई थी, बनाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर एक पर्सन जो चाहे किसी भी जगह से बिलोंग करता है उसको गवर्नमेंट जॉब का पूरा हक है। हर एक जगह पे जहाँ पे वो काम करना चाहता है वो काम कर सकता है। अपनी उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है, जिस अकॉर्डिंग उसकी टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना कोई भी काम कर सकता है। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 2 है सिविक्स का वो फिनिश होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, तो आपका काम है कि आपको ये चैप्टर एक बार पूरा अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको PDF की फॉर्म में दे दिए जाएंगे। और ये जो जितने भी चैप्टर आपको अभी तक करवाए हैं ये सारे चैप्टर आपकी UT सेकेंड में आने वाले हैं। तो प्लीज़ प्रिपेयर देम वेरी अपनी अच्छी तरीके से इनको प्रिपेयर करके रखना है। थैंक यू।